guys, so today we are going to start our fourth tutorial video of our web development series. So guys, if you have not accessed my previous video, then do check out my video, link is in description. So guys, let's start our video. In today's video we are going to discuss about SEO and some basic tags like meta tag, use of meta tag in SEO, and also some image tag, link tag, script tag, etc. So guys, let's start. So first of all, we discuss about SEO. What is SEO? So guys, SEO stands for search engine optimization. So guys, search engine optimization is a process of improving the quality and quantity of traffic to our website or our web page from the search engine. So how it works: whenever we do searches on any particular search engine, so what search engine does, search engine goes out and scores the web to find the page based on our desired search and index them in their catalog. Guys, it is similar to having a book which has an index at the end. So that index carries the information of that particular book and as well as its location. So guys, suppose if you search anything in search engine, so what search engine does, it provides you link one after the other based on your required searches. So that link are put in a sequence that are based on the clicks by the user. So suppose there is first link, so that first link might be containing 70 to 80% of the clicks by other users. So that is why it is coming at the top, followed by the other links of lesser priority of clicks. So this is how search engine optimization works. So guys, moreover, we will discuss how we can increase the optimization by using meta tags. And there is one more thing: search engine optimization are of two types. One is on-page search engine optimization and second off-page search engine optimization. So guys, on-page search engine optimization is an optimization where we tell Google search engine and other users that we have all the keywords of that particular thing that a user wants to search. Suppose user want to search about fashion, so we would include different keywords regarding fashion, and therefore the user will be able to access our websites. Moreover, off-page optimization is an optimization in which we rely on other websites. Suppose a user is on a particular website and that particular website contains different links. So in the backend we would link our website to those links, so whenever the user click on those links, the search engine would direct the user to our website. This is how off-page search engine optimization work. Also, off-page optimization is little bit far from our reach, therefore we use that optimization at a minimum rate. Moreover, we focuses on on-page optimization. So guys, this was a brief how our search engine optimization works and how it is important to our website. So अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें विजुअल स्टूडियो कोड पे वर्क करेंगे. हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं ट्यूटोरियल 4.html के नाम से. तो मैंने पहले भी आपको जैसे बता रखा है कि हमें बार बार सिंटेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम एक्सक्लेमेशन प्रेस करके एंटर करेंगे, हमें खुद ब खुद ये एक बेसिक सिंटेक्स HTML का ला के दे देगा. हम टाइटल चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम बेसिक टैग्स डालते हैं इन HTML. अब गाइज, मैंने आपको इन सब ट्रैक्स के बारे में पहले ही बता रखा है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. जो ये कैर सेट है, कैर सेट डिफाइन करता है हमारा कैरेक्टर एनकोडिंग हमारी कैसी होगी. तो UTF-8 के अकॉर्डिंग हमारी कैरेक्टर एनकोडिंग होगी. मोरोवर इसने यहाँ पे कुछ स्केलिंग का बता रखा है. स्केलिंग मतलब स्केलिंग 1.0. तो इसका मीनिंग ये है कि हमारी जो साइट होगी वो हमारे ब्राउज़र पे फुल स्केल रहेगी, बिल्कुल लेफ़्ट से ना राइट से हमारी कोई भी गैप नहीं रहेगा. फुल स्केल साइट रहेगी, पूरे ब्राउज़र पे ये डिस्प्ले होगी. तो इसका मीनिंग ये है. तो हमें क्या काम करते हैं, हम मेटा टैग एक और डिफ़ाइन कर लेते हैं. और मेटा टैग में जैसे ही मैंने टाइप किया, इसने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं.
तो गाइस हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉम्पैट चूज़ करते हैं। तो कॉम्पैट क्या बताता है, हमारी कॉम्पैटिबिलिटी, कि हमारा जो कंटेंट है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के वर्जन 7 पे बेस्ट कॉम्पैटिबल होगा। तो ये सब चीज़ें हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हेल्प करती हैं। मोर ओवर मैं एक और टैग डिफाइन करता हूँ, मेटा। तो गाइस इसमें मेटा मैंने डिफाइन किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें DESC डिफाइन करता हूँ। तो DESC मीन हमारा डिस्क्रिप्शन, हम थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन इसमें दे दें तो जो हमारा यूज़र सर्च करेगा उस हिसाब से, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमारी वेबसाइट शो होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ डिस्क्रिप्शन, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब एक और क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मेटा KW। तो KW मीन्स हमारा कीवर्ड्स। सो गाइस बेसिकली ये डिफाइन करता है हमारा कि हमारा यूज़र जो कीवर्ड देगा उस हिसाब से हमारी साइट रिस्पॉन्ड करेगी, उस हिसाब से हमारा सर्च इंजन हम स्क्रॉल करके हमारी साइट को यूज़र तक लेके जाएगा। तो सपोज़ यूज़र ने फैशन का कुछ सर्च किया, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड दे दूँगा फैशन या फैशन हब। तो गाइस ये सब कीवर्ड्स आप यूज़ करके आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को और अच्छा बना सकते हैं। तो गाइस ये था यूज़ हमारे मेटा टैग का इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो गाइस हम HTML में कुछ और टैग्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे और क्या क्या टैग्स होते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक IMG टैग डिफाइन करता हूँ। तो IMG टैग बेसिकली हमारी इमेज देने के लिए यूज़ होता है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सोर्स दे रखा है, तो सोर्स में हमें उस इमेज का पाथ देना होता है। तो यहाँ पे हम सपोज़ कीजिए एक एक्टिव स्टडी फोल्डर है, एक्टिव स्टडी फोल्डर में यहाँ पे img1.jpg नाम से एक फ़ाइल का नेम देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये मेरी HTML डॉक्यूमेंट पे एक फ़ाइल ऐड कर देगा। तो गाइज़ ये यूज़ होता है हमारा इमेज टैग इंक्लूड करने का। वैसे यहाँ पे img1.jpg नाम से कोई फ़ाइल है नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल एक डेमो दे रहा हूँ कि हमारी कैसी इमेज शो हो सकती है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, मैं इसको रन करवाता हूँ। तो गाइज़ ये रन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसने मुझे एक ये ब्लैंक इमेज लाई है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारी कोई इमेज वैसे इंक्लूड नहीं हुई है, पर एक्चुअली यहाँ पे इसने एक एरिया दे दिया है हमारी इमेज के लिए। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारी इमेज कैसे इंक्लूड होती है। तो सपोज़ कीजिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी इमेज दे दूँ और उसका पाथ यहाँ पे डालूँ, तो जब मैं रन कराऊंगा तो हमें वहाँ पे एक प्रॉपर इमेज दिख जाएगी। तो ये हमारा इमेज टैग यूज़ होता है। मोर ओवर अब हम डिस्कस करेंगे एक और टैग जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारी HTML में, जो कि है एक स्क्रिप्ट टैग। तो बेसिकली स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, तो स्क्रिप्ट टैग बेसिकली हमारी जावा स्क्रिप्ट को इंक्लूड करने के लिए होता है। तो सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे src यूज़ करा है। अगर मैं src यूज़ नहीं करता तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे अपनी जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करके हमारी HTML फाइल को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। पर हम एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे src जब इंक्लूड करेंगे तो हम src में हमारी यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट फाइल का कुछ नेम दे सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे tutorial1.js जो कि हमारी फ़ाइल बनी हुई है ऑलरेडी, मैं उसका यहाँ पे सोर्स दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, उस फाइल को ये इंक्लूड कर लेगा एक्सटर्नली, और हम उस फाइल में और भी कुछ फंक्शन ऐड करके हम हमारी साइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा स्क्रिप्ट टैग। एक और टैग होता है जो कि होता है लिंक टैग। तो गाइज़ बेसिकली लिंक टैग क्या होता है, हमारी जितनी भी हमारी एक्सटर्नल जो फाइल्स हैं, सपोज़ एक JS फाइल है, CSS फाइल है, हमें उनको इंक्लूड करना है एक्सटर्नल फाइल्स को, तो हम यहाँ पे उसका रेफरेंस दे सकते हैं और उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल देता हूँ, देखिए इसने मुझे ऑलरेडी ऑप्शन दे दिया CSS इंक्लूड करने का। तो मैं यहाँ पे CSS इंक्लूड किया, जिसकी वजह से हमारी tutorial.css फाइल यहाँ पे यूज़ हो सकती है। तो ये सब हमारे टैग्स हैं जो कि हम HTML फाइल में यूज़ कर सकते हैं हमारी साइट को और अच्छा बनाने के लिए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और टैग्स के बारे में बताऊंगा और कुछ टेबल्स वगैरह के बारे में बताऊंगा जो कि हम HTML में यूज़ कर सकते हैं।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो गाइज वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को टच कर दें ताकि आपको मेरे चैनल से लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट गाइज, होप यू एंजॉयड माई वीडियो।